of CA, on behalf of CASMB, I welcome you all to this program for the CASMB Women's Cell presentation expert speak on overcoming challenges faced by women entrepreneurs and also the launch of our Purna Brahma magazine. Over to you, Nilesh sir. I would request you to come forward and speak. Thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us. This is Nilesh Lele, the current president of Chamber for Advancement of Small Medium Businesses. I take this opportunity to welcome our three guest speakers. And I would also like to thank them for accepting our invite and being here. Professor Smita Lele, Dr. Shilpa Bhatt, and Preeti Thakkar madam. And we look forward to listening to you. I also like to welcome our other advisory board members from our chamber. I see Dr. Prakash Kondekar. I know Dr. Bodh Halde was going to join. I also welcome Shubha Nishtala, who's the current president of AFST Mumbai chapter, and a few other familiar faces I'm seeing here. So I would take that common welcome to all of you. As you're aware, this chamber was founded recently with an official launch on March 1st, 2021, because we realized that especially the micro, small, medium enterprises have taken a big hit during the COVID times. So with that backdrop, many like-minded of us came together and we launched it. And I would also take this opportunity to tell you about few of the initiatives that we have launched in last few months with consultation with a lot of our members and talking to a lot of different startups. We realized that typically they are a one-man show, or what we say, you are alone at the top. So with that background, we realized that they face a lot of challenges. And so we have launched this concept called Startup Buddy. So we are giving them different, associating them with different mentors or service providers or just coaches who can guide them to take their business to the next level. We have also started a knowledge series program. Like we have one in the evening where it will be on one district, one product, which is the recent scheme that has been launched under the PMFME, under the Atmanirbhar Bharat. So that is targeting really small scale manufacturers, self-help groups. And in fact, it's in Marathi so that people from rural places can also get access to the information. Today's session will focus more on what the ODOP scheme is. And every week we'll bring an expert who will talk about, let's say next week is mango, which is one district, one product for Ratnagiri, Sindhudurg. Then we'll have on fisheries, which is for suburban Mumbai, Mumbai city, as well as Raigad, and so on and so forth. We'll try to cover all 36 districts of Maharashtra. We have also started a technology transfer cell because a lot of technologies are being developed at various research institute, ICT, NIFTEM, CFTRI, in the food section. Also in EV, we have one expert who has joined us from an electric vehicle background. So we are trying to get those technologies and handle the complete transfer process all the way down to the end user. We have also launched a chamber investor platform because a lot of startups need funds. So, and recently we closed one deal, a Bangalore-based nutraceutical company who got funded 10 CR through this platform. And we are in different incubation centers for their startups to get funded. And so on and so forth. There are many other initiatives, but two key initiatives which we are actually launching today, and I feel very proud. And I've seen the hard work put in by both the teams. So first and foremost, I would like to announce the official launch of our quarterly magazine called Purna Brahma. And for that, I would like to invite, I think, Rupa Kanvinde, who's the editor. I think I saw her. Yeah, I would like to invite her. And Dr. Ritika Joshi from ICT Marathwada Jalna campus. Dr. Prakash Kondekar also was very actively involved. And all others who have contributed towards the various articles, right from
Mr. Subhash Bhattacharya from Northeast, he's in Assam, to some of our advertisement supporters who are in the US. So I invite all of you, if you are here, please join us, and all the three guest speakers today, I request all three of them to please join us in officially launching the Purna Brahma magazine. And Rupa madam, you want to talk before the launch or you want to talk after the launch? I know you have put in a lot of hard work. It's not easy compiling and ensuring the accuracy of each and every article and so on and so forth. So you want to say a few words before or you want to say something afterwards? You're muted. You're on mute, Rupa. Okay. Yes. Am I audible now? Yes, yes. Yes. So first of all, thanks a lot for giving me this opportunity. And today is Guru Purnima day. So first of all, I would like to thank my mother and then my all gurus, because of whom I can achieve some goals in my life. Then on occasion of this Purna Brahma magazine, actually as an editor, I want to share my few experiences with you. Just within few minutes, actually. I'm not taking much of your time. So first of all, I want to thank my motivational guru, Nilesh Lele sir, because उनका ऐसा है कि वो he is like a swimming coach. हमको डाल देते हैं पानी में, तैरना अपने आप आ जाता है, ऐसा है. So he is actually government guru of all of us, all members of CSMB chamber. After that, Purna Brahma magazine journey is really wonderful till now, and actually I am working as an editor for the first time of any magazine. So the all efforts are of entire team. Then like editorial team was there, Prakash Kondekar sir is there, then Dr. Ritika Joshi, then advisory committee is there, then designer committee also helps a lot to us because this is our first magazine experience. Mr. Musale and his staff, actually they have helped us a lot. Then our designer team, Umesh Gaikwad is there, Diksha is there, then Prajakta Kende is there. So the magazine is due to the efforts, entire efforts of entire committee. So I would like to thank all of them. And this magazine is about thematic issue. This is the thematic issue of entrepreneurship development. And in this, I would like to thank all authors also who have sent their technical articles in time to us. And they also cooperate us with a lot. And our advertisement givers, Mr. Shisagar sir is there, then Darshani sir is there. So they have sent their advertisements to our magazine. And our next issue, I would like to just explain. Our next issue is on innovations in food processing industry. So thanks a lot for giving this opportunity once again to me to be a part of your team and as an editor of Purna Brahma magazine. So over to you, sir, now. Yes, thank you. So I would like to invite the three guests here today. If you can declare that the magazine has been launched, and if you want to say a few words, otherwise I'll, like Rupa madam mentioned, it's on thematic issue on entrepreneurship development. And we can probably scroll through the magazine. You'll soon get the PDF version of it. This is a e-magazine or a... This is right now in soft copy format. Okay. We are going to print it, and what you're seeing right now is a flip book. Okay. So that it, especially for the launch process, it looks a little easier to go through the magazine rather than scrolling through the PDF. So that's the whole idea. And in fact, if you scroll, click on it, it actually becomes bigger also. Okay. So it's in the multiple formats. Good. So congratulations. 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 It is a very good initiative. Yes. Rupa, let me share with you. I was editor of IFSA's newsletter also, maybe 30 years back. I was editor of AFST Mumbai chapter thing also, 20 years back. So it gives a very good experience of collating technical things with creativity, because we are not
really trained for the creativity thing through our academic career. So it becomes very, very nice experience. All the best. I'm sure all of you will do very well. Yes, ma'am. I have learned a lot during this journey. So thanks a lot. Thank you very much. Yeah, Kiran sir is also here, who is one of our supporters for the magazine. Thank you, Kiran sir. So with this, I take the opportunity to announce the launch of our second venture, which is our Women's Cell. And in fact, today's program is already, the Women's Cell has already become active, and before the launch itself, they have planned their first program. So unlike Rupa madam say, I just throw them into it, and I'm like, ठीक है, आप program पहले decide करो, फिर हम launch करेंगे Women's Cell का. So I took that liberty with Arpita Doshi madam. So I welcome Arpita ji to share few words and also lay out the vision for the Women's Cell. Sure, sir. Thank you so much for inviting me, and I welcome all the esteemed speakers as well as all the participants to this Women's Cell program. So CSASMB Women's Cell is vision to empower women on their own feet. We want to make an Atmanirbhar Nari. We normally, as a women, we always are dependent. Like Smita Lele ma'am said, that we have got men, right? But we want to make empower women with their own funds as well. And for that, entrepreneurship journey is a must. So that's where we want to like to do our program is based on what all the challenges and how to overcome those challenges while having a woman entrepreneur in a business. So that's where we are going to launch our first program with. I would like to introduce our today's speaker, Dr. Smita Lele. Dr. Smita Lele, words are not there enough for you to describe, ma'am. However, I have made a very short, brief introduction. Dr. Smita Lele has got 40 years plus experience in food technology, especially in fruits and vegetables, the most difficult things to handle. Dr. Smita Lele retired in March 2020 from the post as Director of ICT Mumbai Marathwada campus at Jalna. Presently, she is serving as Emeritus Professor of Eminence and has written many books, 125 international publications, 3 patents, and more than 100 masters and PhD students guided under her leadership. Dr. Smita Lele is an epitome woman who proves woman has a great strength to overcome any challenges if given exposure and constructive upbringing. I welcome Dr. Smita Lele to our first CASMB Women's Cells program. Welcome, ma'am. Thank you. Our next eminent speaker, Ms. Shilpa Bhatt. Ms. Shilpa Bhatt is an example for today's generation. Ms. Shilpa Bhatt started her journey from a small village of Gujarat. Presently, she is a chairperson of GCCI Business Women Wing Committee and handles her own passionate founded business of chocolates. She is the pioneer to introduce chocolate bouquet concept, which is highly popularized among Bollywood celebrities. Ms. Shilpa has written a book on Mehndi designs, which has been published by a renowned publication in Gujarat. Apart from book, Ms. Shilpa has also been awarded with Swayam Siddha 2014 by GCCI. Ms. Shilpa proves that how women are diversified and given opportunity, they can be Atmanirbhar Shakti to nation's economy. I welcome you, Ms. Shilpa ji. Thank you. Our another eminent speaker is Ms. Preeti Thakkar. Ms. Preeti ji started her career as a culinary chef, as a home chef to a journey where she has conducted more than 300 plus. So this is her introduction for you all. After she herself identified the challenge, which normally is found in Gujarati household, of deciding evening menu meals. Thus, in 2005, she started Cookery Club, where presently she is conducting many cookery events to bring awareness in healthy, balanced diet meals with innovative twist. Apart from Cookery Club, Ms. Preeti has worked as a culinary consultant for many renowned multinational brands like Nestle, Zepspri, Kiwi, Tata, Cadila, etc. Ms. Preeti has demonstrated more than 1.8 lakh women about her culinary skills. Also won Best Rasoi Guru Award from ETV Gujarati. Ms. Preeti demonstrates true dedication in sharing her healthy, low-calorie cooking skills among women, thereby addressing
the UN SDG 3 goal, good health and well-being. I welcome you, Preeti ji, on this occasion. Thank you very much. So today's our discussion, as per our vision, is how we overcome all the challenges that normally women find in conducting their businesses. So my first question will be to Dr. Smita ji. Ma'am, you have a tremendous experience working among students, and since past 40 years plus, so you have seen a lot, many decades of transformation from one generation to another generation. And on basis of that, I would like to ask you a question that what would be your views on how students are nowadays budding to take up entrepreneur as their journey and career? What does it motivate them, and what are the challenges that we can still work on with, ma'am? If you can help us to throw some light on it. Yes. Are we supposed to talk in Hindi, Marathi, English combination? Na? We should not keep it strictly to English, right? Right. So, Arpita, while introducing me, you have not put one information. I was the first woman engineer to join Hindustan Lever. It was called HLL in 1977. And they had come for campus interview, and we were two girls in the class, myself and Anjana. And they had come for management trainee interviews. And she went there for appearing for interview. They said, we will not conduct your interview. हम नहीं आपका interview लेंगे क्योंकि हम लड़कियों को नहीं लेते. This is 1977, a multinational company saying this. So naturally, UDCT, our Professor M.M. Sharma, he was always a very strong supporter of women students. तब वो रिजर्वेशन नहीं था वुमेन सीट्स वगैरह, तो सचमुच इंजीनियरिंग में कम लड़कियां एक दो आती थी, कभी कभी एक आधे क्लास में होती भी नहीं थी. तो he talked to the top person, KKG Menon, who was the pioneer biochemist. So India knows him as a fair and lovely person. Now they have changed the name for different reasons. Because if you see this kind of difference, man, woman, color, it is always there in the culture. So I will tell you funny thing. Unilever is so old. Why they never thought of fair and lovely in Europe? क्योंकि सब गोरे ही है ना. It is in India where they say मुझे गोरी बीबी चाहिए. Now whether it is good or bad, it is the mindset. So there is nothing like good and bad when it comes to psychology. In science you can say 2 + 2 4 ही आएगा. But psychology में 2 + 2 22 4 0 minus कुछ भी हो सकता है, वो उसका अपना परसेप्शन है. So मेरा तब ये अनुभव है कि जब प्रोफेसर शर्मा ने बात चलाई तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में तो हमारी पॉलिसी नहीं है, बट रिसर्च में वी कैन चेंज अवर पॉलिसी, वी आर रेडी टू कंसिडर. तो अंजना को तो रिसर्च में नहीं जाना था. सो देन आई वॉज सिलेक्टेड. हमारे 5 राउंड्स थे, 5 बच्चों को लिया मेरे क्लास से, 4 लड़कों को भी लिया, IIT वगैरह दूसरे भी लोगों के लिया. हर साल वो 10-12 लोगों को लेते थे फ्रेश केमिज को. तब उनका रिसर्च बॉम्बे में था. एंड आई फाउंड कि मैं जब पहले दिन गई तो मुझे देखने और मिलने के लिए लोग आए थे, क्योंकि वो पूरा पायलट प्लांट का वो पूरा 25 एकड़ में कभी किसी औरत ने अपना पैर नहीं रखा था. बट आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम वर्किंग देयर. सो जब यू हैव माइनॉरिटी, यू मस्ट नो कि हाउ टू यूज इट इन अ इथिकल वे, बिकॉज सभी को तुमको तुम्हारा नाम याद है. So अगर आप जाके किसी बैंक मैनेजर को मिलते थे उस जमाने में, ज्यादा औरतें नहीं आ रही है लोन मांगने, तो ये याद तो रखेंगे ना इजीली कंपेयर टू द दूसरे में. यानी कि हर बार माइनॉरिटी डजंट मीन कि इट इज अ माइनस थिंग, आपके व्यू पॉइंट के ऊपर है. दूसरी बात यह है कि अभी तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि कंड्यूसिव फॉर लड़कियों के लिए, तो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब ऐसे प्रोग्राम लड़कों के लिए करने पड़ेंगे. एंड इफ यू सी इंग्लिश, वुमन वर्ड के अंदर मैन है, तो हम लोग हमको कम क्यों समझते हैं? हम लोग ज्यादा है, इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ज्यादा है. ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल, बिकॉज हम घर का भी सब कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा करके संभाल सकते हैं, सास ससुर का भी देखभाल करते. हर बार जरूरी नहीं कि उनके पैर दबाओ. यू आर मैनेजिंग,
यू मे हैव सर्वेंट्स बट यू नीड अ सुपरवाइजर। और कहाँ पे लड़का सुपरवाइजर है या तो हस्बैंड, वो तो औरत ही सब करती है, बिजनेस भी करती है, घर का भी शी इज मैनेजिंग। तो मल्टीटास्किंग हमारा बाय बर्थ ही अच्छा है और अपब्रीडिंग में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और आज की लड़कियां तो और ज्यादा बोल्ड है, लड़के भी है, सो दे डोंट वांट टू वर्क अंडर एनीबॉडी। इससे अच्छा है कि मैं खुद अगर कुछ करूंगी तो मुझे फ्रीडम भी रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ काम का रहेगा। कभी मुझे गैप्स भी लेने हैं घर के लिए तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अगर मेरे साथ अच्छा पार्टनर है। दैट पार्टनर कैन बी अनदर वुमन आल्सो और इट कुड बी फ्रॉम फैमिली। तो जॉब में, और अभी जॉब में कंपटीशन इतना अच्छा है कि हमारे टाइम में जॉब में जो स्टार्टअप सैलरी था, स्पेशली साइंस में, बहुत ही कम है स्टार्टिंग सैलरी कंपेयर टू द इनपुट। तो क्यों ना, अगर 25,000 मेरे को सैलरी लेके इतना सब मेरा 100% किसी कंपनी को देना है, मैं रिस्क लेके क्यों ना खुद का छोटा शुरू करती हूँ। 2 साल मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। और अभी बच्चे भी कम है तो कई बार माँ बाप भी कहते हैं कि करो। पुराने जमाने में रिस्क टेकिंग के लिए माँ ही पहले पीछे खींचेगी तेरे को, तू लड़की है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारा जल्दी शादी हो जाएगा, फिर बाद में देखो। आज की माएँ ऐसा कहती नहीं, और कहा तो लड़कियां सुनती भी नहीं है। इट इज गुड, ये बहुत सही है, सही बराबर है। तो इसके लिए मुझे वो बहुत फर्क तो है ही। मीन्स अभी इट इज वेरी वेरी कंड्यूसिव फॉर ऑल स्मॉल स्केल बिजनेस, चाहे मैन हो वुमन हो, डजेंट मैटर। और वुमेन को हमेशा एक एडवांटेज है, इवन करियर में आई हैव सीन कि वो गैप लेके कितनी सारी लड़कियां ने बाद में पीएचडी किया है, सेम विथ मी। बट मुझे ऐसे लड़के पता नहीं है कि उन्होंने एक बार गैप लिया और 10 साल के बाद आके, तो आरएंड दीज ऑल प्रिविलेजेस कि हम आगे हमारा एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी भी अगर पहले जॉब लिया तो वो छोड़ के अपना भी एंटरप्रेन्योरशिप 40वें उम्र में शुरू कर सकते हैं। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जेंडर और सोशल स्ट्रक्चर ने ही हमें दी है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सही बोला मैम। आपकी बात देख के मैं कितना अपने आप को भी रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। जो आपने बोला कि आप गैप लेके, तो वही हम सब की स्टोरी ये है कि गैप लेके हम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली पिन पॉइंट मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस शिल्पा जी। शिल्पा जी, आप एक बहुत छोटे से विलेज में थे जहाँ पे स्कूल सिर्फ गुजराती मीडियम की होती थी, और आज आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पूरा वो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो वहाँ की जो बिजनेस विमेन विंग है और डाइवर्सिफाइड आपकी स्किल सेट्स है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है और चॉकलेट्स है। तो आपकी जर्नी में कितने कितने क्या क्या चैलेंजेस आए, थोड़ा वो भी आप बताएं, और आपने किस तरह से उसको ओवरकम किया है मैम? थैंक यू सो मच CASME कि मुझे इनवाइट किया और मेरी जर्नी सुनाने का मुझे मौका दिया। और मैं सबको थैंक यू बोलूंगी, अर्पिता जी को कि खास कि जिन्होंने मुझे ढूंढा कि मुझे मेरी जर्नी शेयर करूं। जो मैडम ने बोला, स्मिता मैडम ने, वो एकदम सही बात है। मैं तो बहुत छोटे से, मैंने बताया जो अर्पिता जी ने, कि बहुत छोटे से गांव जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ, पर एक पहले से ये सोच थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि पहले जो अपब्रिंगिंग होता है पेरेंट्स का, तो उनमें ऐसा ही होता है कि भाई शादी करना है और बस आपको काम करना है। तो पर मेरी एक ही सोच थी कि मुझे जीवन में कुछ करना है, किसी को मदद करनी है। वो क्या करना है, कैसे करना है, वो भगवान जानता है, पर मुझे कुछ करना है, बस यही सोच थी। और थोड़े शादी हो गई, 21 साल में तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर लगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। पर मैं जब छोटी थी सबसे, मैं पापा से ना पॉकेट मनी नहीं लेती थी, मतलब 10th स्टैंडर्ड से। तो भले छोटा सा गांव था, पर वहां पे वो अलग तरह की रिबन बनाते हैं, छोटे से बो बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की आइटम जैसे सिरामिक के पॉट डिजाइन करते हैं, तो वो सब मैं बना के सेल कर देती थी, खुद सेल करती थी। तो सबसे पहली मेरी क्वालिटी मुझे पता चली कि मेरी में मार्केटिंग स्किल अच्छी है, कि मैं किसी को भी मेरी चीज है वो मैं बेच सकती हूँ। मतलब मेरे यहाँ पे फंडा सब बोलते हैं कि कोई भी गंजा हो तो उसको मैं कंगी भी बेच सकती हूँ, वैसी मेरी मार्केटिंग स्किल है। तो वो शुरुआत हुई। फिर मैं अहमदाबाद में 2001 में हम लोग आए, तो वहीं से था कि मुझे कुछ करना है। जो मेहंदी की बुक का बताया, तो वो भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे जाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से जाना है। सिर्फ मैं पहले मेहंदी लगाती थी वहां पे कलोल में,
5 डिजाइन लेके मैं नवनीत के ऑफिस में गई थी। तो उन्होंने बोला ऐसी तो बहुत सारी बुकें छपती है, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, एक बार आप मेरी डिजाइन तो देख लो। मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मुझे भले गांव से आई हूँ पर मुझे कुछ करना है, तो मुझे थोड़ा झुंझुनना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा कोई प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड नहीं है। तो बस वो ऑफिस में गई, उन्होंने मना किया, फिर मैंने बोला एक बार देख लो। तो उसी टाइम बोले ना कि कुछ भी आपने सोचा हो ना तो कुछ मिरेकल हो जाता है। तो जब मैं डिस्कस कर रही थी वहां के मैनेजर से, तो वहां से उसी टाइम वहां के जो एमडी थे वो निकले। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ डिस्कस कर रही है, तब मैं करीबन 22-23 साल की थी। बोले ये लड़की कुछ डिस्कस कर रही है, मेडिका दिखा रही है। तो उन्होंने वहां रुक के वो सुना, फिर बोला कि आप अंदर आओ मेरे कैबिन में। तो बस वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हुआ, एक कॉन्फिडेंस लेवल आया कि चलो एमडी ने बुलाया, बुक की बात तो अलग हो गई कि उन्होंने बुलाया। और फिर उन्होंने बोला कि ऐसी बुक बहुत है पर आप 100 डिजाइन बना के लेके आओ और हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। तो बस एक वो शुरुआत हुई, एक कॉन्फिडेंस लेवल आया कि नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरे साथ मेरे भगवान है और मैं कुछ करूंगी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मेरी जर्नी हुई। फिर मैंने चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें मैंने घर के बेसमेंट से हार्डली 1500 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था और चॉकलेट मैं घर के लिए बनाती थी। तो बस वो 1500 रुपये की जर्नी आज मेरा करोड़ों का टर्नओवर हुआ है। मेरा खुद का ऑफिस है, वर्कशॉप है, और काफी सारी मैं अभी नई नई यूनिक चीजें बनाती हूँ, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हुआ, स्कल्पचर पे मैं बहुत काम करती हूँ। और ज्यादातर मैं कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करती हूँ कि जैसे कंपनी की कस्टमाइज चॉकलेट बनानी हो। चॉकलेट बुके मेरा एक नया कॉन्सेप्ट था, तो वो बहुत ही अच्छा चला। तो कंपनियों के मैं पूरे साल साल के कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, जैसे हॉस्पिटल हुआ, कोई फार्मा कंपनी हुई कि उनके एम्प्लॉय को बुके भिजवाना है, तो पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ। और अभी तो रिसेंटली मैंने वो चॉकलेट का राम मंदिर बनाया था। तो वो मेरा मैंने अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर किया है, फिंगर क्रॉस कि वो हो जाए मेरा। तो बस इसी तरह से जर्नी, मतलब कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती है। और छोटी शुरुआत आप सोचोगे तो वो मतलब शुरुआत करनी पड़ती है कहीं से, एक कॉन्फिडेंस थोड़ा लाना पड़ता है और सोचना है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, भले वो एक बार मना कर देगा पर एक बार जाओ तो सही, जाओगी नहीं तो कहाँ से काम आगे होगा। तो पापा की बात वो हमेशा मैं याद रखती हूँ। और धीरे धीरे ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी तो अहमदाबाद में और काफी सारी जगह पे मेरा मतलब नाम है। और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की बिजनेस वुमन विंग कमेटी में हूँ। हमारे चैम्बर में 325 लेडीज है जो प्योरली बिजनेस करते हो, जिनका फॉर्म रजिस्टर हो, वही लेडीज उसमें बिजनेस में उसमें मेंबर बन सकती है। तो अभी उनके रिलेटेड काफी सारे उनको एम्पावर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अभी एक रिसेंटली एक मैं स्टोरी बताऊं, जो ये आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी बोल सकते हैं कि जैसे एमएसएमई प्लेटफॉर्म है, तो रेलवे जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे काफी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो लोग 15,000 करोड़ का परचेज करते हैं एवरी ईयर। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उनका फिक्स होता है कि 20% वो लोग एमएसएमई से परचेज करते हैं और 3% वो लोग वुमन एंटरप्रेन्योर से परचेज करते हैं। और ये चीज की जो गैप थी वो भर ही नहीं रही है, क्योंकि वो वुमन को पता ही नहीं है कि इस तरह से कुछ हमें बेनिफिट मिलता है। इवन उन लोगों ने तो इतने तक बोला कि टेंडर भरो तो 100 का किसी का होगा और वुमन का 115 का होगा, तो हम लोग 115 पे फोकस करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है जो आप उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम्स भी कर सकते हो। और उसमें जेम रजिस्ट्रेशन करवा के, गवर्नमेंट का पोर्टल है उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा के ये बेनिफिट ले सकते हो। तो बस ऐसे ही जर्नी छोटे लेवल से शुरू करके अभी एमएसएमई तक हम लोग पहुंचे हैं और काफी सारी लेडीज को हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। अभी एक छोटा हमारा भक्ति दीप करके प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोगों ने 100 लेडीज को सिखाया है। उसमें एक दिया बाती बनाने का प्रोग्राम। और उसी पैशन की वजह से हमें गुजरात गवर्नमेंट ने, जो महिला एंड बाल विकास के मंत्री है, उन्होंने हमें बुलाया था। उनको हम लोग मिलने गए थे, तो उन्होंने एक विडो महिला, उनके पास पूरा डेटा है, तो 150 विडो महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देना है, वैसा हमें प्रोजेक्ट दिया है। तो अभी उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। 80 लेडीज का तो हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है
और वो ही चीज है कि गवर्नमेंट को भी हम पे ट्रस्ट होने लगा है कि नहीं, ये लेडी इतना काम, मतलब पूरी टीम इस तरह से काम कर सकती है। तो बस यही मेरी छोटी सी जर्नी से बड़ी शुरुआत हुई है। और एक बात मैं और भी कहूंगी कि ये पेंडेमिक में मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए कि चलो कोई किसी को ये, क्योंकि चॉकलेट छोटा बिजनेस है, 10-15 हजार से भी कोई भी शुरू कर सकता है। तो कोई वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। लास्ट ईयर मैंने शुरू किए थे। ऑल ओवर वर्ल्ड से मोर देन 1500 लोगों ने अभी तक सीख चुके हैं। तो बहुत अच्छे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बस यही शुरुआत है, चैलेंज की बातें आगे करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति जी आपसे है कि आपने एक घर के किचन से शुरुआत की ऊपर, और वहां से आप पूरा कलनरी शेफ और सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कंसल्टेंट सब कुछ आपने किया, तो इतना डाइवर्सिफिकेशन आपको किस तरह, आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से आपने चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, और वो भी आज आप इतने सालों से कर रहे हैं, जब आपके बच्चे भी बहुत छोटे थे तब से आपने ये सब शुरू किया है। Yes, Arpita. Thank you. It's wonderful question actually. I would just like to, मतलब मैं उसके ऊपर थोड़ा elaborate अच्छे से करना चाहूंगी कि ये, क्योंकि ये हर एक मतलब लेडी जो कुछ करना चाहती है उनके लिए, मतलब आप एक तो पैशन तो होना ही होना है। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे हर्डल्स हमेशा रहते हैं। और जब हाउसवाइफ की बात करते हैं, मतलब अगर आप घर में बच्चे संभाल रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, तब तो वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि घर से जब आप काम करते हैं तो आपको एक शॉर्ट वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। ऑल द टाइम यू आर मैनेजिंग दिस ऑल्सो। कहीं पे मतलब कोई गेस्ट आ गया, उसको भी आपको अटेंड करना है। आपको एक, आपने कुछ बड़ा सा ऑर्डर लिया, क्लास लेकर आप बैठे हुए हैं, और आपको तुरंत उस वक्त मतलब यूर एक्सपेक्टिंग कि आपके बच्चे को कुछ लग गया या कुछ हो गया, तो एकदम से आप वो चीज़ छोड़ के करना। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चैलेंजेस हमेशा आती रहती है। तो आप उनको ओवरकम करके जब वर्क फ्रॉम होम जब लेडी मैनेज करती है, आई थिंक इट इज रियली, उनका वर्किंग आवर्स 18 टू मतलब 19 आवर्स का मेरे हिसाब से हो जाता है, एंड दे डू इट ब्रिलियंटली वेल। पर उनको एक आराम की, मतलब जो एक सांस लेने की जगह चाहिए वो नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप घर में काम करते हैं तो व्हेन यू लुक अराउंड, तो आप काम भी करते हैं, उसके बाद आप जब देखते हैं तो घर का भी बहुत सारा काम आपके लिए एक चैलेंज के तौर पे खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें, मतलब आई वाज आल्सो, आई स्टार्टेड माय जर्नी, क्योंकि टिपिकल, मतलब आई वाज मैरिड इन अ गुजराती फैमिली, और सब लोग घर में, ये बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली था, तो ये चाहते नहीं थे कि आप बाहर जाकर के कुछ काम करो। तो तब जाकर के मुझे लगा, पर्टिकुलरली मतलब माय हस्बैंड वाज वेरी फूडी, ही लव्ड परफेक्ट टेस्ट, मतलब मदर इन लॉ का कुकिंग इतना अच्छा था कि उनको सारी चीजें बहुत परफेक्ट चाहिए थी। तो आई वाज वर्किंग ऑन इट, और साथ साथ में मैं हॉबी क्लासेस वगैरह सब मैंने शुरू किए, क्योंकि घर से कुछ करना था। तो बेटी भी छोटी थी, उसको संभालना था, तो बोला आप घर से कुछ कर लो। मैंने शुरू किया, और अच्छा सा, मतलब चीज़ें अच्छी चल पड़ी। तब सीखने का चलन कुछ ज़्यादा ही था जब मैं इस फील्ड में आई। विद ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छे अच्छे क्लासेस, मतलब 300-400 स्टूडेंट्स एक सीजन में आ जाते थे। तो बहुत अच्छा लगने लगा कि भाई ये चीज़ें अच्छी हो रही है। उसमें साथ साथ में कुकिंग की बहुत इंक्वायरी आती थी, एंड देन बाय दैट टाइम मैं, मतलब कुकिंग में थोड़ी मास्टरी आ गई थी मेरी। तो मुझे लगा कि भाई चलो कुकिंग क्लासेस भी करते हैं, मतलब लोगों को पंजाबी, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन का उतना ज़्यादा तब नॉलेज नहीं था, लोग सीखते थे, पीपल वांटेड टू लर्न। तो मैंने घर से ही शुरू किया। वेटिंग में नाम रहते थे, एक बैच खत्म करो, दूसरे बैच के लिए वेटिंग। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम, मतलब 7-8-10 साल के लिए सारी चीज़ें चलाई। तो घर का माहौल एक, इट वाज लाइक अ होटल फीलिंग। आपके घर में पूरे दिन खुशबू खाने की आती रहती है। यू डोंट फील हंग्री योरसेल्फ। और घर वालों को भी ये लगता है, आर्ट्स पड़ोस को पता चल जाता है कि आज आपके केक के क्लास हुए, आज आपका चाइनीज हुआ, इटालियन हुआ। तो मतलब घर में वो जो एक कंसिस्टेंट, मतलब आपको एक घर जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो नहीं रहता था। यस, इट वाज वेरी इजी कि आप घर से कुछ शुरू करते हैं तो फाइनेंस आपका कम रहता है, एफर्ट्स आपके कम होते हैं, आपके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, घर में आपके पास फ्रिज भी है, ग्राइंडर भी है, मिक्सचर भी है, तो आप सारी चीज़ें जो भी चाहिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वो अच्छा रहता था। बट यस, दिस वाज द चैलेंज। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मतलब घर में पूरा दिन, आई डोंट वांट दिस टू बी स्टक इन द हाउस ऑल द टाइम विद दिस स्मेल। तो मुझे लगा कि अब घर वालों को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए।
पूरा दिन मतलब खाना वाना उनको भी ऑथेंटिक खाना चाहिए, पूरा स्मेल जो आता है वो चीज किसी को शाम को खानी भी नहीं होती थी, यू नो। जो क्लास पता है आज पंजाबी का कुकिंग क्लास है, तो उस दिन उनका डिमांड रहेगा कि आज आप कुछ चाइनीज बना के खिला दो, आज हमको पंजाबी का स्मेल बहुत आ रहा है, यू नो। सो इट वाज आई स्टार्टेड टेकिंग ब्रांड कंसल्टेशन विच वाज मतलब मुझे अच्छा सा एक ऑफर आ गया ईटीवी रसोई शो से। उन लोगों ने मतलब बोला कि सखीरी करके उनका एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बोला आप कुकिंग शो के लिए आइए। दैट वाज हाउ माय जर्नी डाइवर्सिफाइड। फिर मैंने रसोई शो के साथ काफ़ी शोज 11 साल मैंने रसोई शो किया विद लो कैलोरी एंड हेल्दी रेसिपीज, और उसी के साथ साथ आई लाइक टॉकिंग टू वीमेन, और फूड न्यूट्रिशन का भी मेरा अच्छा खासा मतलब आई वाज लर्निंग लॉट मैनी थिंग्स, तो मैं लेडीज के साथ वो भी बहुत ज़्यादा शेयर करती थी। तो ओवर टाइम एक मतलब पॉपुलैरिटी अच्छी होती गई, साथ साथ में ब्रांड्स भी अप्रोच करने लगे। तो आई वर्क विद फ्यू इंटरनेशनल ब्रांड्स जहाँ पे मैं मेरे नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर पाई। सच बोलूँ तो जब स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन योर रीजनल क्यूजिन। तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया कि उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेड स्टफ के लिए ना भागकर आप अपने जो किचन में जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वर्क करके काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज डेवलप की, काफ़ी अच्छे मतलब उसमें मुझे बहुत अच्छा एक सक्सेस रेशियो मिला। बच्चे भी काफ़ी मतलब दे ऑल्सो लव्ड फूडी थे, क्योंकि वो आई एम अ वेरी सिंपल फूड ईटर, मतलब स्टेपल फूड मुझे ज़्यादा पसंद है, पर उन लोगों को चाहिए था, तो मैं उस हिसाब से भी काफ़ी आई ट्राई टू क्रिएट जंक को मैं थोड़ा न्यूट्रिशनल बना के काफ़ी चीज़ें सब्सटीट्यूट करके, वो मेरा एक मतलब पहले से ही वो पैशन रहा, एंड दैट गेव मी ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी इन लेडीज क्लब्स एंड किटी ग्रुप्स। तो मैंने करीब अब तो 2 लाख लेडीज के लिए शोज किए, और बहुत ही अच्छा रहा जर्नी। और ब्रांड्स भी वे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि मैं आई ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट वॉट एवर आई से। मैं कई चीज़ों में मतलब आई नेवर गिव रॉन्ग इम्प्रेशन कि ये हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो। मैं हाउसवाइफ को एक उनके ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करती हूँ, तो उनको मजा आता है, बिकॉज इफ आई यू टॉक बिग बिग थिंग्स नो, दे लाइक इट बट दे कैन नॉट रिलेट टू इट। और मुझे ऐसा चाहिए था कि वो लोग मतलब मैं भी उनके शू में पैर रख के देखूं और उनको वही सॉल्यूशन दूं जो उनको वाकई में प्रॉब्लम है, एंड दैट वाज वेयर थिंग्स वर्क वेरी नाइसली फॉर मी। और काफ़ी चीज़ों में मतलब मैंने जैसे जो जो बताया, मैंने हमेशा यही बोला कि डोंट गो फॉर ग्रीन टी। आपके किचन में इतना बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन टी एंड व्हाई डोंट यू ड्रिंक इट, यू नो। हर्बल टी आप बना लो, आप इतनी ज़्यादा आपके किचन में, और इंडियन क्यूजिन तो पर्टिकुलरली स्पाइसेस के हमारे पास तो खजाने हैं। तो वैसी वैसी जो मेरी टिप्स वगैरह रही उससे काफ़ी अच्छा लोगों को मतलब कनेक्शन रहा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। रिपीटेड मेरे शोज काफ़ी ग्रुप्स किटीज़ में होते रहते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू नो आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड दैट इज़ हाउ आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फील्ड है, एंजॉयिंग इट। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने ये जर्नी शेयर की। रियली इट्स अ ग्रेट जर्नी और ग्रेट अचीवमेंट। मेरा आप स्मिता मैम आपसे यही है कि अभी आप अगर चैलेंजेस देखें तो स्टूडेंट्स में अगर एंटरप्रेन्योरशिप लेनी है तो एकदम शॉर्ट में 2 मिनट में आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चैलेंजेस है जो अभी स्टूडेंट्स लोग फेस कर रहे हैं जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी में? गर्ल स्टूडेंट्स particularly या in general? Any students, ma'am, any students. We want to work, yeah, both of them, yeah. बेसिकली अभी के स्टूडेंट का जो माइंडसेट है ना, उनको हर चीज फास्ट फॉरवर्ड करना, तो दे वांट शॉर्टकट सक्सेस, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आस्क एनीवन। तो उनको वो थोड़ा पेशेंस का ही जरूरत है। बाकी दे हैव मेनी क्वालिटीज विच वी डिडंट हैव बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज अभी जैसे वी वर टॉकिंग कि प्रीति दीदी ने वो क्लासेस बंद किया, अच्छा ही हो गया। अभी तो गूगल चाचा को ही सब पूछते हैं। Things have changed, but doesn't mean कि always all the recipes will be authentic. There could be some secret things. Sometimes wrong things are given. Anything on nature and anything on internet is always correct is not true. नेचर में भी पॉइजनस चीजें बनती है, कुछ ऐसे मशरूम्स है जो खा के आदमी मर भी सकता है। इट इज नेचुरल, डजंट सो उनको क्या है, सब शॉर्टकट और बड़ी बड़ी चीजों का, लाइक गाड़ी है तो मर्सिडीज फरारी
के साथ ही उनका नाम शुरू होता है, नहीं तो अभी के जो भी इलेक्ट्रिक, आई मीन वेरस जब हम लोग ने, जैसे कि मेरा जो जनरेशन है, इट इज पोस्ट इंडिपेंडेंट, बट वी हैव सीन द कंट्री वाज पुअर, एवरीबॉडी वाज पुअर, सो यू डोंट हैव टू से कि वी वर पुअर, बिकॉज स्कूल में पंखे नहीं थे, एसी कहाँ होंगे। बट अभी जो सो कॉल्ड लोअर फाइनेंशियली लोअर भी है, उनके पास बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि कंट्री ही इतना पुअर नहीं है। जैसे कि जो भी मेरे घर में आके काम करने वाली बाई है, उसके पास एसी नहीं है बट फैन है। बट मेरे बचपन में मेरे घर में सीलिंग फैन नहीं था, इट वाज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी। तो इनको, ये बच्चों को आज को ना, वो दे आर नॉट एबल टू परसीव ओनली कि कोई विदाउट इंटरनेट पढ़ सकता है। मैं भी मराठी मीडियम में मैंने पढ़ा है, बट मैं हमेशा बच्चों को पूछती हूँ कि आप जब पैदा हुए आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। वो इट इज अ ट्रैप, बट समटाइम्स दे से आई न्यू मराठी और आई न्यू गुजराती, देन आई विल से मेरी माँ तो मुझे बोलती है कि 2 साल तक मेरे को बोलने को ही नहीं आता था। देन दे स्टार्ट लाफिंग। सो वी कैरी इन आवर माइंड कि मेरा मीडियम ये है, इसके लिए मैं लेस स्मार्ट हूँ। तो वो एक उनके दिमाग से, स्पेशली इन महाराष्ट्र, स्टिल मेनी रूरल पीपल स्टडी इन मराठी मीडियम, और इवन इफ दे स्टडी इन इंग्लिश मीडियम दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो वो एक इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो निकालना जरूरी है। इंग्लिश में मत बात करो ना, आधे इंग्लिश में करो, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तुमको कहाँ अंग्रेजी का एग्जाम देके टॉफेल देके जाना है, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें है, और उनको बहुत सब कुछ फास्ट शॉर्ट सर्किट में चाहिए। और वो एक परसिवेरेंस की 4-5 P's आर इम्पोर्टेंट। वो जो आजकल सब टेक टॉक में वगैरह भी बोलते हैं, बट देयर दे आर टॉकिंग ऑफ ग्रिट में दे टॉक ऑफ ओनली 2 P, परसिवेरेंस एंड समथिंग। आई विल से 4 P's। एक तो परसिवेरेंस है, पहले परसिवेरेंस, पैशंस, दोस P आर फ्रॉम ग्रिट, बट आई विल ऐड टू दैट प्लानिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो उनको चारों P के ऊपर उनको करना है, एंड इट्स सिंपल थिंग। कोई भी 3D स्ट्रक्चर करना है, 1 पॉइंट या 2 लाइन या 3 पे भी नहीं होता, कम से कम 4 खंबे होते हैं। तो बिजनेस में 4 खंबे लगते हैं, जिसमें एक टेक्नोलॉजी होगी, एक प्रोडक्शन साइड होगा, एक मार्केटिंग साइड होगा, सेलिंग इज डिफरेंट, और एक फाइनेंस साइड होगा, और एक एंटरप्रेन्योर होगा जो सेंटर में रहेगा। तो जब छोटे हैं तो आप सभी खुद कैप्स पहन के, हैट्स पहन के सब रोल करते हैं, बट थोड़े से बड़े होने के बाद यू मस्ट नो कि मैनेज कैसे करना है, हर चीज को टाइम लगता है, एंड स्पेशली फॉर फूड इंडस्ट्री, लाइक आई विल टॉक केमिकल इंजीनियरिंग विच इज माय प्राइमरी एजुकेशन। सो देयर आर सिस्टम टाइम्स। तो जो चीज, जैसे कि फूड में भी देखते हैं, जो चीज बढ़ती है 4 दिन में, या तो 1 हफ्ते में, या तो 1 महीने में, वो मरती भी फास्ट है। सो वो चीज फटाक से, जैसे कि IT बेस्ड थिंग्स है, वो सिस्टम टाइम्स कम है, तो 3 महीने में कुछ पॉपुलर होगा, 3 साल में आदमी भूल भी जाएगा उसका नाम। बट फूड में, या तो एक क्लासिकल चीजें जो है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसको टाइम लगता है, बट एक बार सेट हो गया तो आप बरसों तक वो बिजनेस कर सकते हैं। बट इनोवेशन वगैरह वो सब जो लगता है आजकल के बच्चों में, वो बहुत है, दैट इज नॉट देयर लिमिटेशन, आई थिंक। ओके, थैंक यू मैम। शिल्पा जी, मैं आपसे भी यही पूछूंगी, अगर आपको अभी चैलेंजेस है, आपको अगर स्केल अप करना है, तो कौन कौन सी चैलेंजेस आपके हिसाब से है जो कुछ हम कर सकते हैं? चैलेंजेस देखो, मैं तो ये 325 लेडीज की अभी चैलेंजेस हर रोज सुनती हूँ। तो सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि कॉस्टिंग, क्योंकि अभी इतना पेट्रोल का भाव बढ़ा है, उसके चलते सारी चीजों का भाव बढ़ गया है। सबके पास पैसे अभी कम है, नहीं है, जितने हैं सब सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए जितना हो उतना सरवाइव कर पा रहे, वही बड़ी बात है। तो काफी सारी हमारे पास लेडीज की आती है चैलेंज कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। वीवर्स तो बेचारे, छोटे वीवर्स जो है वो तो खत्म ही हो गए, वैसी बात हो गई है। पर मुझे एक चैलेंज में भी कई बार अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ती है कि चैलेंज हमारे पास आया है तो हमारे बिजनेस को हम डाइवर्सिफाई कैसे करें। जैसे मेरा ही एग्जांपल दूं कि मैं चॉकलेट का बिजनेस करती थी, अभी सबके पास पैसे नहीं है तो गिफ्टिंग के लिए पैसे कहाँ से कंपनी निकालेगी। तो मैंने उसको डाइवर्सिफाइड किया ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो मेरा चल पड़ा। तो वही है कि हमारी जो चीज है उसको हमें अभी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कैसे उसको डाइवर्सिफाइड करना है, उस हिसाब से आप चलोगे। और रास्ते हमेशा, एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुल जाते हैं।
मैं काफी सारी गीता पढ़ती हूँ और उसमें बहुत बिलीव करती हूँ। तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल थक हार के मत बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग काफी मोटिवेशन सेशन के इसके लिए लेते हैं कि आप थक मत जाओ, हार मत जाओ, क्योंकि काफी सारी लेडीज ने 40-45 बाद के भी बिजनेस शुरू किए होते हैं और घर में वही बोलते हैं कि लो 2 लाख, गुजराती में बोलते हैं कि 2 लाख નો ખર્ચો કર્યો અને કશું મળતું નથી અત્યારે। तो वो उनके लिए एक चैलेंज होता है। पर मैं बोलती हूँ थक मत जाओ, आप आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। और ऐसे ही जो मैंने बोला है एमएसएमई का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। हम लोग ऐसे गवर्नमेंट में ऑफिसों में जाते हैं कि जहाँ पे कहाँ से कुछ चीज की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जैसे अभी एक लेडी का बिजनेस था, वो उसका टोटली बंद हो गया और उसका एकदम से अपब्रेकिंग हो गया, वो ग्लोव्स का बिजनेस। तो अभी वो बाहर से 1 करोड़ उसने ग्लोव्स इंपोर्ट किए और यहाँ पे सिर्फ उसने पैकेजिंग किया और अच्छे से पैकेजिंग किया और उसने एक्सपोर्ट किया, उसने सिर्फ लॉजिस्टिक किया, पर वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, सिर्फ हमें ढूंढनी है, और जो ढूंढ गया वो जीत गया, वो मैं मानती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सही बोला आपने। प्रीति जी, मैं आपके पास आ रही हूँ कि आपको अगर होम शेफ को अगर अपने आप को स्केल अप करना है तो क्या चैलेंजेस या क्या उनको प्रॉब्लम्स होते हैं? होम शेफ्स के लिए एक्चुअली अभी तो मैं बोलूँगी पेंडेमिक में दे हैव बीन ब्लेस्ड कि उनकी सबकी मतलब चल पड़ी है। फूड इंडस्ट्री इज द वन दैट इज एग्जैक्टली बहुत सारे घरों को मतलब निभा दिया है फूड सही बात इंडस्ट्री। है, यस। और बहुत सारे ट्रैवल वाले, इवेंट वाले, काफी लोग दे हैव शिफ्टेड टू फूड, मतलब फूड होम इंडस्ट्री। शेफ का कॉन्सेप्ट काफी चला है। होम शेफ्स आर लाइक एवरीवेयर अराउंड। आप अपने मतलब सबसे पहले उनका चैलेंज ये रहता है कि वो लोग खाने में कंसिस्टेंसी रखे, साथ ही साथ में जो डिलीवरी है उसमें भी मैंने कई बार देखा है, आई व्हेन आई ऑर्डर, किसी को कोई ना कोई मतलब कुछ नया शुरू करता है तो दे अप्रोच अस, राइट, कि पूछते हैं, कुछ बात करते हैं। हम पहली बार ऑर्डर करते हैं ना तो वो लोग बहुत अच्छा वाला पैकेज भेजते हैं, बहुत अच्छी चीजें आती है। एंड देन वंस यू स्टार्ट ऑर्डरिंग ना रिपीटेडली, तो आपको पता चलता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में फर्क है। तो ये एक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली आपका इम्पैक्ट जो लोगों को जो एक बैठा है विश्वास आप पे, वो तुरंत डगमगा जाता है। तो सेकेंड टाइम दे आर नॉट यू नो ट्रस्टिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का इश्यू रह जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन का इश्यू हो जाता है और देन दे स्टार्ट काउंटिंग मनी। पहले क्या होता है कि एक बार अच्छा कर लेते हैं, कर देते हैं, करते, बट डोंट डू दैट। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नुकसान करके काम चलाओ, बट बी वेरी स्पेसिफिक। आप सारी चीजों के पे थोड़ा पहले होमवर्क कर लो। ये नहीं कि आप 120 रुपए में टिफिन दे रहे हैं, उसमें आप पापड़ भी दे रहे हैं, आप अचार भी दे रहे हैं, सैलेड भी दे रहे हैं, आपको नहीं अफोर्ड होगा। बटर मिल्क दे रहे हैं, आप मत दो, आप उसका 150 रुपया रखो, क्योंकि आपको वो चीज तब भी जाके आपको कुछ उसमें, अभी तो पैकेजिंग इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। ये प्लास्टिक का जो मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली जेस्चर वाली सारी चीजें काफी एक्सपेंसिव हो गई है। और आजकल टच पॉइंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लोग स्टील के टिफिन वगैरह जो पहले डिब्बे चलते थे वो नहीं चल रहे, एवरीथिंग कम्स इन डिस्पोजेबल स्टफ। तो काफी सेंसिटिव इश्यूज हैं उनके लिए, चैलेंजेस, एक्सपेंसेस आर मोर। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। थोड़े से कॉम्बो प्लेटर्स में आप कुछ वर्कआउट करें। पीपल आर नॉट इनटू ईटिंग टू मेनी थिंग्स नाउ। तब अच्छे अच्छे मतलब वन बोल मील टाइप के रेसिपीज इनोवेट करके उसके कॉम्बोज देंगे तो भी लोगों को पसंद आने वाला है, बिकॉज पीपल आर टू मच हेल्थ अवेयर नाउ। सब लोगों को पता है कि हमें प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, फैट भी लेना है, कलरफुल मतलब आपको विटामिन मिनरल्स की भी जरूरत है। तो आप कुछ अच्छे से ऐसे कॉम्बो प्लेटर्स अपनी यूएसपी बनाइए, तो होम शेफ्स के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम करेगी। क्योंकि रोटी दाल चावल सब्जी तो कहीं भी मिल जाएगी लोगों को, और सबका अपना एक अलग टेस्ट होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक घर का एक मतलब आप हर एक घर की, मैं यस्टरडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू समवन कि हर एक घर में दाल अगर आप टेस्ट करेंगे, हर एक घर की दाल अलग होती है। तो आपका शायद टिफिन का आपको उतना पसंद ना आए, पर ऐसे कोई इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट आप लेकर आ गए तो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। और साथ ही साथ में मार्केटिंग इज ऑल्सो बिग, मतलब सोशल मीडिया पे तो चला लेते हैं लोग, कर भी लेते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उसमें भी
आई वुड तो डेफिनेटली इंसिस्ट कि आप अगर एक नई चीज कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो आपका कोई अच्छा सा ऑर्डर आपको एक कंज्यूमर, आपका कस्टमर दे रहा है, तो आप उसके साथ साथ उसको छोटा सा एक सैंपल नई चीज का भेजिए. दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर बिजनेस. और आपको आप कुछ इनोवेटिव तरीके से एक एवरी वीक मील प्लान्स चेंज करिए, तो आपको बहुत अच्छा सा उसका फीडबैक मिलेगा, उसका अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा. और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लास्ट मिनट ऑर्डर्स बहुत आ जाते हैं and they're not able to cope. और जाने भी नहीं देना होता है बिजनेस. लगता है कि यार फोन आया है, 5 टिफिन चाहिए, कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके लिए फिर कॉम्प्रोमाइजिंग कम्स इन. सो लिटिल स्मार्ट वर्क. थोड़ा सा आप अपने फ्रिज को, डीप फ्रिज को अच्छे से इस्तेमाल करें, थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन कुछ चीजों का करके रखें, एंड यू इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आप जाकर के लोगों को बोल दीजिए. लोग आपका सच बोलना ज्यादा पसंद करेंगे. आप बोलिए मैं ये सारा नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ इट, और आप थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट करिए, मैं आपको अच्छी सी कुछ चीजें देती हूँ. एंड वंस इट दैट बॉन्ड क्लिक्स, तो फिर आपको वो लोग पूछेंगे कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, हम क्या ऑर्डर करें आपसे. एंड दैट इज हाउ बिजनेस इज गोइंग टू वर्क. सो कम्युनिकेशन अच्छा सा, रेपो एक अच्छा सा बन गया, तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई और चैलेंजेस होम शेफ्स को फेस करने पड़ेंगे. तो इस तरह कर सकते हैं सक्सेसफुली बिजनेस. थैंक यू. अगर मैं बोलूँ तो मेरी जो थोड़ी सी जर्नी हुई है उसमें मुझे एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी है, और वो सिर्फ एक ही वर्ड में मैं डिफाइन करती हूँ, इनोवेशन. उसमें चैलेंज भी है और उसमें अपॉर्चुनिटी भी है. आपको डिफाइन करना है कि क्या लग रहा है आपको. सो दैट्स हाउ इट इज. अपने सर ने बहुत सही बोला कि ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत मायने रखती है. Thank you all so much. We are nearing to our finish time, so I would like to request Rupa ji to give a vote of thanks. Sir. I think Trupti is going to do. Oh yeah, Trupti ma'am. On behalf of CASMB Women's Cell, I would like to thank our expert speakers, Dr. Smita Lele ma'am, Shilpa Bhatt ma'am, and Preeti Thakkar ma'am, to be with us and guide us and give such a wonderful insights on the subject. I would like to also thank the participants for joining us. I would like to thank our president, and I would like to thank all of you for the fantastic insights towards the program. Thank you all for being there. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was amazing to be Yes. with such a wonderful panel. Thank you so much. Thank you. Thank you.